early 90s, an idea struck an Indore-born US student named Amit Kumat. The idea of pairing something papad crunchy with a steaming plate of dal rice, chips. A few years later, in 2004, entrepreneur Amit Kumat, along with Apurva Kumat and Arvind Mehta, turned this idea into a homegrown snack offering named Yellow Diamond. With a turnover of 900 crore and distribution in 28 states, today Yellow Diamond stands among the top snack manufacturing companies of India and continues to win the trust of customers across the globe. Ladies and gentlemen, you all must be wondering that why I am talking about Yellow Diamond chips. Our next fireside chat is around those crunchy chips. Yellow Diamond chips, Desi idea, Damdar ambitions. I would like to invite Satyajit Sen, Head Product and Community, ET Brand Equity, to lead the conversation and introduce our guest for this chat session. Over to you, Satyajit. Namaste everyone. Welcome to this power-packed session titled Desi Idea, Damdar Ambitions, or as I would like to call it, Karare Ambitions. Today, we are taking a closer look at the Bharat market, and it will be criminal for me not to talk about the brand story of a brand called Yellow Diamonds. Yellow Diamonds is a subsidiary of Pratap Snacks, and this is a story of such a venture that made Karare snacks available to 1.2 million corners of India and beyond. What was born in Indore as a idea of Shri Amit Kumar is today a rupees 650 crore brand, and these numbers are as of H1 financial year 2022. The brand's distribution network includes more than 240 super stockists and more than 4,300 distributors, allowing its extensive reach across the country. Today, the brand has over 100 SKUs, manufactured around 15 facilities, and selling approximately more than 1 crore packets per day. The numbers are big, and the brand has a wide variety of presence that is equally spread across metros and non-metros, tier 1, tier 2, and tier 3 cities. The products are available at independent grocers, small retail stores across the lanes and bylanes of India. And today, as we speak, the brand is building up its presence in supermarkets, hypermarkets, and modern trade outlets. Today, I am fortunate enough to be joined by the man himself, Shri Amit Kumar, who would take us through the journey of Yellow Diamond as a brand, the marketing challenges and the distribution challenges that they faced initially, how they overcame it, and the opportunities that lie ahead for the brand. So, Namaste Amitji, and welcome to our show. Thank you, Satyajit. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot for giving us the opportunity. Thank you, sir. Thank you so much for for first of all creating this made in Bharat brand, and there is immense opportunity to learn a lot of things from this session today. So to start off, Amitji, why don't you take us through the entire story of the growth and the birth of Yellow Diamond chips, right? We read somewhere that it started from Indore as an idea after you came back from the States. But what was the entire inspiration behind creating a made in Bharat Desi brand? Thank you. Thanks a lot. सबसे पहले तो I would like to clarify that I am the spokesperson of the company. It's not my idea. The idea is basically we are three partners: Arvind Mehta ji, Apurva Kumar, my brother, and Amit Kumar. We three are the guys who are basically behind this project. Unfortunately, मैं बोलता हूँ इसलिए शायद मैं हमेशा आगे नाम दिखता है. So we started in 2005. It's a 16-year-old venture, and I think FMCG food में a company doing more than 1,000 crores. We are the youngest in the country by all means. जब 2004-5 में चालू करा था, it was a 22 lakh rupees turnover company with basically in the 2 months of operation. The second year we did 1 crore of rupee. And when we started, we thought that we have to do something in food. हमको ऐसा लगता था कि इंडिया में इंडियनाइज स्नैक फूड की बहुत जरूरत है, कुछ करना चाहिए. Something has to be done, and there is a huge potential in the country. When I was in US, people used to eat potato chips with dal chawal. अपने पापड़ खाते थे. मुझे concept लगा मुझे something has to happen here. So we three started this company in a 10 by 10 square feet office.
with 15 lakh of seed capital, and first year revenue was 22 lakh rupees and a crore of rupee. We started with getting cheese balls job work manufactured from Lucknow. वहां से चालू करा, शायद शुरू के रोज के 100-200 पैकेट ही बेच पाते थे. इनिशियल टाइम्स वर वेरी टफ. फिर 1 करोड़ रुपए का धंधा करा. फिर everyone got confident. Then we thought that we should venture into our own unit. We bought a second-hand chip line which was already a 40-year-old line for 60 lakh rupees. जब लेके आए तो लोगों ने बोला कवड़ा लेके आ गए, this line is never going to start. Fortunately, we were able to start it. We took a place on rented place basically. जहाँ बैठते हैं वो पहले रेंट पे प्लेस ली थी, फिर जगह खरीदते चले गए. अभी भी वो रेंटेड पे प्लेस है. वो लाइन आज भी संभाल के रखी हुई, हमको लगता है म्यूजियम में संभाल के रखेंगे वो. आज 60 साल पुरानी लाइन हो गई ऑलमोस्ट. एंड वहां से जो देखा तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा. We started with potato chips Yellow Diamond brand name के साथ में. We started with Western market first क्योंकि लॉजिस्टिकली वो वहां पे काफी अवेलेबल था व्हीकल्स वगैरह. शुरू में 2014 तक हमारी जो मेन प्रॉब्लम थी, हमारी एक ही यूनिट हुआ करती थी इंदौर में. तो डिस्ट्रीब्यूटिंग अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम इंदौर वाज नॉट इजी. इट वाज वेरी डिफिकल्ट. तो वी हैड अ 3 लेयर स्ट्रक्चर जहां हम बेसिकली सुपर स्टॉकिस्ट बनाते थे विच इन टर्न्स यूज्ड टू सप्लाई टू डिस्ट्रीब्यूटर. तो ये एक कमी थी जिसमें हमारी एक लेयर बाकी लोगों से रीजनल पेयर से ज्यादा हुआ करती थी. वी स्टार्टेड विद इट. Slowly, gradually, we kept on adding plants. आज की तारीख में we are working on 15 plants. 7 हमारे खुद के प्लांट है, 8 हमारे बाहर के प्लांट है, और अभी काफी जगह इंडिया में अक्रॉस प्रेजेंस हमारी अवेलेबल है. अगर स्नैक फूड की मैं बात करूं तो स्नैक फूड को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज पोटैटो चिप्स, Indian namkeens, ethnic snacks, which is a small category for us right now, extruded snacks and pellets. We are present in all the categories. काफी जगह प्लांट है, सब जगह थोड़ा थोड़ा कहीं प्रोडक्शन करते हैं. We are almost present in 1.7 million outlets in the country as per AC Nielsen. जो नंबर हम चाह रहे हैं steadily धीरे increase बेसिक हो पाए, will come to distribution later. और आज की तारीख में we should clock around almost close to 1400 crores of revenue this year. So 15 साल में शायद यहाँ पहुंच पाना हमें लगता है कि बड़ी खुशी की बात है. ये भी तब हुआ जब लास्ट 2 years में कोविड के कारण we could not grow because ours is more of a impulse purchase market. Our 85 to 90% sales come from the 5 rupee pack जो हम रोज के 1 करोड़ पैकेट बेचते हैं. तो जब कोविड पीरियड आया, लोगों का मूवमेंट बाहर कम हो गया, तो डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ गया. स्कूल्स बंद हो गए थे, कॉलेजेस बंद हो गए थे. We then changed the strategy quite a bit, and now probably we are feeling much comfortable as of today. That's a great story, sir. And बहुत शुक्रिया ये इनिशियल एनेक्डोट्स बताने के लिए. So, अमित जी, हमने देखा है कि स्पेसिफिकली हम जब FMCG कैटेगरी की बात करते हैं, the biggest contributor to growth जो हम बोलते हैं has always been the cracking the distribution code, right? Right. So initially आपने ये कैसे क्रैक करा? क्योंकि आज जैसे आपने बताया कि आपने शुरुआत में 100 पैकेट्स बेचे और अभी आप 1 करोड़ पैकेट से भी ज्यादा बेच रहे हैं पर डे, राइट? तो here a lot of this credit goes to your strong distribution network. तो ये धीरे-धीरे आप लोगों ने कैसे ग्रो करा? एंड what would a new age entrepreneur और आज जो इस मार्केट में अपना नया बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या सीख हो सकती है? तो पहले तो आई कम टू योर सेकंड क्वेश्चन ऑन द न्यू एज एंटरप्रेन्योरशिप. मुझे लगता है न्यू एज एंटरप्रेन्योरशिप के लिए डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया हैज बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट. आप देखेंगे जो इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें 1.12 मिलियन आउटलेट्स है. 1 करोड़ 20 लाख आउटलेट है. पूरे शायद वर्ल्ड में मिला के भी इतना आउटलेट नहीं होंगे. हर जगह गली नुक्कड़ में आउटलेट है. अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो वहाँ 1.5 लाख आउटलेट है. इनका जो कवरेज है वो बहुत ही डिफिकल्ट है. तो अगर नया एंटरप्रेन्योर मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं सर आप चिप्स कर रहे हैं, हम भी चिप्स करना चाह रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी? मैं उनको एक ही शब्द बोलता हूँ, इम्पॉसिबल. अगर कुछ करना है तो कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा. हमने भी शायद कुछ अलग सोचा था, इसलिए आज इस मुकाम पे यहाँ पहुंच पाए. पर डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक करना आज की तारीख में हैज बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जब हमने महाराष्ट्र लॉन्च करा था तो पूना में हमने उस टाइम पे हमारे अकाउंट में शायद 2-4 लाख रुपए थे. हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइजमेंट दिया, 5 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट था. हमें लगा कि इतने एप्लीकेशन आ जाएगी कि ढूंढना मुश्किल हो जाएगा किसको दें किसको नहीं दें. वी गॉट ओनली वन एप्लीकेशन फ्रॉम पुणे. हम उस टाइम बेसिकली मैं पूना गया, उस पार्टी के यहाँ पे गया, तो उसके छोटा सा उसका गोडाउन था, उसी में ऑफिस था. तो मैंने बोला भैया आप कैसे काम करोगे, ये तो बहुत छोटी शुरुआत है. बोला सर मैं मार्केटिंग में जॉब करता था, मैंने अभी नया काम चालू करा है,
अभी तो गोडाउन भी नहीं और पैसे भी नहीं, अगर आप काम पैसे देंगे तो मैं काम कर लूंगा, अगर आप माल दे देंगे तो मैं काम कर लूंगा। अरे बोला गजब बात है, आपने भैया टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट दिया और आप ऐसी बात कर रहे हो। बोले सर ऐसे ही है। आप विश्वास रखिए, उस पार्टी को हमने पहले 2-3 गाड़ियां दी, आज की तैयारी में हमारा 100 करोड़ रुपए साल का धंधा करता है वो। तो वो ट्रस्ट था, बिलीफ था, सामने वाले की कॉम्पिटेबिलिटी समझ आई, कॉम्पिटेंस समझ में आया, एंड वी डिड दैट एंड इट क्रैक्ड। तो गेटिंग इनटू डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इजी, वी स्लोली ग्रेजुअली पिकअप करते गए, पहले 1 स्टेट करा, 2 स्टेट करा, आज की तारीख में प्रॉब्लम प्रेजेंस इन मोर देन 15 स्टेट। उसमें भी हमको आज 1.7 मिलियन आउटलेट्स में, जब भी हम इंदौर में जाता हूँ, मैं हमारे सेल्स वाले को बोलता हूँ मुझे तो माल दिखता ही नहीं है अभी भैया, 1400 करोड़ रुपए का माल बेचते हैं, मुझे कि माल नजर नहीं आता है। तो इंडिया एज अ पोटेंशियल, बिलीव मी, पूरे वर्ल्ड में इंडिया की कोई बराबरी नहीं हो सकती है। आपने जो टॉपिक भी लिया है भारत का, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक लिया है। पूरा अगले 10 साल बाद अगर पूरे वर्ल्ड में कोई स्टोरी चलेगी तो इंडिया की स्टोरी चलेगी। राइट, इंडिया का अभी आया है। करेक्ट। ऑन दैट नोट सर, आई वुड कनेक्ट इट टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा अगला सवाल सर आपसे ये है कि अब हम भारत मार्केट की बात कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस या फिर एग्जैक्टली आप अगर एफएमसीजी बिजनेस चाहे तो इसमें 2 पिलर्स ऑफ ग्रोथ जो हम देखते हैं। एक तो है कि your strong distribution network has to be really massive in that sense. Secondly, जो consumer trust build करना होता है, consumers whenever they think about a certain category of product, they would think about that brand. ये हम जनरली कहते हैं कि भारत में इस देश में कंज्यूमर्स ब्रांड का नाम ज्यादा लेते हैं rather than कैटेगरी का नाम। तो वो आपने कैसे बनाया? आपने जैसे बताया कि आपने नॉर्थ से शुरू किया, सो नॉर्थ के कंज्यूमर्स में आपने कैसे वो ट्रस्ट बनाया, एंड धीरे धीरे अभी अक्रॉस इंडिया वहां पे क्या डिफरेंट स्ट्रेटेजीज आपने अपनाया व्हेन इट कम्स टू मतलब क्रिएटिंग दैट ट्रस्ट फैक्टर, क्रिएटिंग दैट रिकॉग्निशन अमंग दोस कंज्यूमर्स? तो हमने बेसिकली 2 चीज करी। हमको ये डे 1 से बहुत क्लियर था कि कोई कुछ भी कर ले, टेस्ट तो आपको बेस्ट टेस्ट देना पड़ेगा। जब हम मार्केट में आए उस टाइम में फ्यू मल्टीनेशनल कंपनीज वर ऑलरेडी देयर, जिनका बजट बहुत ज्यादा था, जिनका ब्रांड बहुत ज्यादा था, इनका टेक्नोलॉजी बहुत थी, वो 100 साल से शायद इस बिजनेस में वर्ल्ड वाइड। तो हमें लगा कि हमको कुछ अगर करना है तो क्वालिटी तो वो लोग दे रहे हैं, वही देना पड़ेगी। कंज्यूमर कुछ भी कर ले, क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। इंडिया बहुत ही वैल्यू सीकिंग मार्केट है, पर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। वैल्यू सीकिंग कैसा मार्केट है? अगर बेसिकली आप अंधेरी में रहते हैं और आप सब्जी लेने गए, आप मर्सिडीज से सब्जी लेने गए, भाई बोलेगी 55 रुपए किलो, आप बोलेंगे 50 में देगी क्या? वो अपने खून में, अपन कुछ नहीं कर सकते। वी वांट वैल्यू। जब हमने लॉन्च करा तो उस टाइम बेसिकली जो एमएनसीज लोग हैं उनका बेसिकली 5 रुपए में 22 ग्राम का वेट था, हमने 30 ग्राम वेट से चालू करा। वी आर ऑलमोस्ट गिविंग 25 to 40% एक्स्ट्रा वेट देन अदर्स फॉर ऑफरिंग। तो वो वैल्यू देख के सेम टेस्ट हमने जो दिया, उससे हम ट्रस्ट बिल्ड कर पाए। एंड वी कीप ऑन इनोवेटिंग। हमारे यहाँ बेसिकली आप समझे कि हर प्रोडक्ट कीप ऑन ट्राइंग, फ्लेवर चेंज करते थे, नया कुछ ट्राई करते थे। कुछ चीजें क्लिक होती, कुछ नहीं होती है, पर हमारा फोकस बहुत क्लियर है। वी हैव टू गिव द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड एंड वी हैव टू गिव वैल्यू टू द कंज्यूमर, और उसको कैसे एनहांस करते जाए। आई थिंक यही 2 चीजें थी कि टेस्ट और अच्छी क्वालिटी दे पाए, इसलिए हम आज मार्केट में टिक पाए सभी लोगों के सामने। Yes, sir. Coming on the product line, and you rightly mentioned about the way you innovated with your product. So अभी हम जैसे देखते हैं कि बहुत सारे कंपनीज है जो रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो फॉर एग्जांपल ईस्ट के लिए उनके टेस्ट्स के अनुसार कुछ प्रोडक्ट्स बना लिया, साउथ के लिए उनके टेस्ट के अनुसार, बट आपके यहाँ पे यू हैव अ कांस्टेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। सो हाउ हैव यू रियली डिफरेंशिएटेड इन दैट सेंस? आपने वो कैसे स्ट्रेटेजी समझा कि this will work across India, this is a pan India brand and this will work across India? तो क्या होता है इंडिया में, अगर आप टेस्ट प्रोफाइल देखेंगे तो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लाइक नॉर्थ इंडिया में पुदीना फ्लेवर ज्यादा चलेगा और वेस्ट और साउथ में टमाटो फ्लेवर ज्यादा चलेगा। तो वी आर प्रेजेंट इन बोथ द कैटेगरीज। तो पुदीना वाला जो टोन है वो बेसिकली नॉर्थ में ज्यादा बिकता है और टमाटर वाला महाराष्ट्र में ज्यादा बिकता है। बट मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इंडियन एथनिक स्नैक्स में, नमकीन में। क्योंकि नमकीन में बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट है। अगर वेस्ट बंगाल में झालमुड़ी बिकेगी तो वही बिकेगी, नॉर्थ इंडिया के अंदर कोई पंजाबी तड़का बिकना वही बिकेगा, साउथ के अंदर वो चावल का बेसिकली कुरमुरे जो चुरमुरे बिकते हैं वही बिकेंगे। तो हमने उस पर अभी काफी काम करा है। और नमकीन हम रीजनल वाइज नमकीन अगले 6 महीने में लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें साउथ इंडिया में साउथ इंडिया के वेरिएंट रहेंगे, नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ इंडिया के वेरिएंट रहेंगे। इंडिया में कोई भी कुछ कॉम्प्रोमाइज कर ले, वेस्टर्न स्नैक्स में इतना टेस्ट प्रोफाइल चेंज नहीं होता है, पर नमकीन में तो जो जहां रहता है उसको वही टेस्ट प्रोफाइल पसंद है, आप उसको चेंज नहीं करवा सकते।
राइट। तो उसमें हम अभी काफी काम कर रहे हैं। अभी इस साल का ये एजेंडा है कि कभी कैसे रीजनल बेसिस पर अच्छे नमकीन के प्रोडक्ट्स बना पाए। सो सर, इसमें अभी जैसे आपने सही कहा कि हमने बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स को भी देखा है इंडिया में आके, उन्होंने अपना पूरा पैलेट बदल दिया, उन्होंने अपना डिश बदल दिया टू सूट द इंडियन कंज्यूमर टेस्ट्स, राइट। राइट। सो आपने जैसे एग्जैक्टली कहा कि टमाटर वाले फ्लेवर साउथ में ज्यादा चलेंगे एंड पुदीना वाले फ्लेवर वेस्ट नॉर्थ में ज्यादा चलेंगे। तो इस स्टोरी के अराउंड मार्केटिंग का क्या क्या रोल है सर? मतलब वंस यू क्रिएट दैट प्रोडक्ट, the product is there, but you have to market it accordingly to that region as well. Distribution game is there, right? But marketing also plays a role. So उसमें आप लोग कैसे देख रहे हो? How we are strategizing the marketing in the marketing front? तो हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं जो ईस्ट इंडिया में बहुत चलते हैं। जो हमारा एक रिंग वाला प्रोडक्ट जिसमें हम टॉय देते हैं, उस कैटेगरी में हम इंडिया में नंबर 1 है आज की तारीख में। ऑलमोस्ट हम 40 लाख टॉय रोज के कंज्यूम करते हैं। वो हमारा नॉर्थ ईस्ट में काफी प्रोडक्ट चलता है। तो हमने वहाँ पे असमीज चैनल पकड़े और आसाम के लिए लैंग्वेज में ही एडवर्टाइजमेंट बना के देते हैं। साउथ इंडिया में बेसिकली साउथ इंडिया के वहाँ के कुछ चैनल्स पकड़े और उन्हीं पे एडवर्टाइजमेंट बना के साउथ इंडिया के लैंग्वेज में देते हैं। प्लस हमको जब लगा कि बेसिकली रीजनल स्पेसिफिक मार्केटिंग करना है, तो हम बेसिकली उस जगह के रेडियो के एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं। जब हमको राजस्थान में हम जब वैल्यू फॉर मनी के अंदर हमने एक बार बेसिकली कैंपेन करी थी, नमकीन बेचना था, तो इसके अंदर हवा नहीं है, इसके अंदर वजन ज्यादा है, वो हमने पूरी कैंपेन रन करी थी। तो वहां का लोकल रेडियो मीडियम ले लिया था। बट आप कुछ भी कर लें, कितना भी रीजनल एडवर्टाइजमेंट कर लें, वरने को लैंग्वेज में कर लें, अगर आप नेशनल ब्रांड हो जाते हैं तो आप रियलाइज करते हो कि नेशनल टेलीविजन से सस्ता कुछ नहीं पड़ता है। नहीं तो आप थोड़े थोड़े पॉकेट्स में इतना पैसा लग जाता है कि वो बेसिकली टीवी काफी सस्ता समझ में आता है। राइट। एंड आई थिंक इसीलिए आप लोगों ने सलमान खान को भी लिया था एज अ ब्रांड एम्बेसडर, एंड दिस रियली वर्क बिकॉज जैसे ही सलमान खान आए आपके ब्रांड के साथ जुड़े, इट एडेड ए न्यू डायमेंशन टू द ब्रांड ऑल टुगेदर। उसकी कुछ कहानी अगर आप बताएं तो ये बेसिकली 4 साल पहले की कहानी है, जब सलमान भाई से बेसिकली बात करी थी। 2 साल का हमने कॉन्ट्रैक्ट करा था। इट वाज वेरी सपोर्टिंग, बहुत अच्छा रहा। बेसिकली 2 साल तक हमने ब्रांड एंडोर्समेंट उस टाइम पे काफी पैसा खर्च करा, तो ब्रांड वैल्यू काफी चेंज हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2-3 साल में हम चैनल इसके ऊपर पैसा ज्यादा खर्च नहीं कर पाए एडवर्टाइजमेंट में। उसके 2 रीजंस रहे। फर्स्ट तो कोविड पीरियड आ गया, तो लोगों की कम्यूटिंग कम हो गई थी, लोग बाहर कम निकल रहे थे। और सेकेंडली अनफॉर्चुनेटली 2 साल में कोविड पीरियड का जो रॉ मटेरियल प्राइसेस थी वो बहुत ज्यादा, हर चीज की बहुत बढ़ गई थी। वो प्लास्टिक हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो कि बेसिकली एडिबल ऑयल हो, सबकी प्राइसेस ऑलमोस्ट 50, 60, 70% रन हो गई थी। तो हम कुछ कर नहीं पाए। बट बेसिकली अगर कोई अच्छा नेशनल लीडर, नेशनल टेलीविजन एक्टर या टीवी मूवी एक्टर लेते हैं, रियली हेल्प्स अ लॉट। अगर इस साल ठीक रहता है तो वापस कुछ करने की कोशिश करेंगे इस साल। बिल्कुल, एंड स्पेशली इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, क्रिकेट एंड टीवी इज द सेकंड। करेक्ट। 2 चीज बिकती है इंडिया में, फिल्म और क्रिकेट। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कोविड पे आते हैं। सो आपने अभी कोविड की मेंशन किया। कोविड का हमने देखा अब भारत में बहुत कुछ चेंज हो गया कोविड के लिए। मतलब वी हैव सीन बिजनेसेस शटिंग डाउन, वी हैव सीन newer formats of businesses arising, people pivoting as well. बहुत लोगों ने अपना business line बदल दिया। They created new kind of products catering to the COVID specific market as well. So इस कैटेगरी में, FMCG कैटेगरी एज ए होल, मैं सिर्फ प्रताप स्नैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर सिर्फ येलो डायमंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटर कैटेगरी स्पेसिफिक में हाउ हैज कोविड रियली हिट दिस कैटेगरी, एंड आप लोग कैसे उभरेंगे और या फिर कैसे उभरने की स्ट्रेटेजी कर रहे हैं फाउंडर्स? पहली चीज तो हम बेसिकली प्री कोविड हमारा जो पीक सेल्स था उस पर वापस आ चुके हैं। तो उभरने की शायद प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। ऐसा लगता है कि यहाँ से ग्रो ही कर पाएंगे। कोविड भी अपने आप में काफी वीक हो गया है। पर जो कोविड से जो 2 सबसे बड़ी लर्निंग थी वो ये थी कि बेसिकली इम्पल्स परचेस का मार्केट बहुत कम हो गया था। लोग बाहर जाके फिजिकल इंटरेक्शन कम करना अब लोगों ने बहुत कम कर दिया था। टेक होम परचेस बहुत बढ़ गई थी। तो जो भी प्रोडक्ट जो टेक होम कंजम्पशन के बड़े पैकेट बनाते थे उनका सेल बहुत बढ़ गया। तो जो बड़े वाले नमकीन के पैकेट्स बेचते हैं, बड़े बिस्किट्स का पैकेट्स बेचते हैं, उनका आप देखेंगे तो लास्ट 2 ईयर में सेल बहुत बढ़ गया। हमारे को बेसिकली बहुत हिट लगा था। तो हमने बेसिकली पहली चीज तो ये करी कि हमने बोला हमारे को टेक होम कंजम्पशन वाले प्रोडक्ट बनाना है। हम लास्ट 6 महीने से उसके ऊपर काम कर रहे हैं, अभी 3 महीने और लगेंगे। तो बड़े वाले एमआरपी के नमकीन के प्रोडक्ट, चिप्स के प्रोडक्ट, सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट बना रहे हैं कि घर में लोग ले जाके खाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 1 करोड़ पैकेट वो लोग पिछले लोग ने रोड पे खाया, पैकेट फेंका और भूल गए।
अब बड़े पैकेट बना रहे लोग घर में ले जाएं और बेसिकली दाल चावल के साथ भी हमारी चिप्स खाएं, वो हमारा टारगेट है, उसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं। सेकेंडली, हमारे जो बेसिकली आज की तारीख में 6 से 7 हजार रूट निकलते हैं मार्केट में, तो 6 से 7 हजार लड़के जो हमारे पेरोल पे या डिस्ट्रीब्यूटर के पेरोल पे मार्केट में जाते हैं, ऑर्डर लेते हैं और बेसिकली रिटेलर को डिलीवर करते हैं। तो दो एक्टिविटी हो जाती है, एक बार पहले ऑर्डर लेते हैं, सेकंड टाइम वो डिलीवर करते हैं। वो फिजिकल इंटरेक्शन रिटेलर बहुत बेसिकली मायूस हो गया था, वो करना नहीं चाह रहा था, तो हमने टेक्नोलॉजी का यूज करा। हमने बेसिकली जितने रिटेलर थे उनको ऑन रोल करना चालू करा और उन रिटेलर्स को ऑन रोल करके फिर कॉलिंग के थ्रू हमने ऑर्डर लेना चालू करे। अभी हम ऑलमोस्ट बेसिकली पिछले 6 महीने में 80,000 आउटलेट्स को डायरेक्टली ऑन कॉलिंग कर चुके हैं और टारगेट है कि 2.5 लाख आउटलेट बेसिकली अप्रैल तक कर लेंगे और अगले साल तक 5 लाख आउटलेट कर लेंगे। तो जितना फिजिकल इंटरवेंशन कम होते जाए, जितना टेक्नोलॉजी का यूज कर पाए, तो मुझे आज की तारीख में यह मालूम है कि इंदौर में कौन सा प्रोडक्ट कौन सी दुकान पे कहाँ बिकता है, वो इन्फॉर्मेशन पहले नहीं थी, पूरी टिप्स पे बेसिकली टेक्नोलॉजी के कारण इन्फॉर्मेशन आ गई है। इस एरिया में 10 दुकानें हैं तो कहीं पे चुलबुले बिक रहे, कहीं नहीं बिक रहे, तो भाई क्यों नहीं बिक रहे वो मालूम पड़ जाता है। वो क्वेश्चन हम लोगों से बेसिकली पूछ पाते हैं, तो उससे लाइफ बहुत बदल गई है और उससे काफी अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिले हैं। जहां जहां ये इंप्लीमेंट कर पाए हैं वहां कम से कम 25 से 30% की सेल्स में ग्रोथ भी आई है। तो इस टेक्नोलॉजी को आगे कैसे और बढ़ा पाए, यूज कर पाए, उसका टारगेट है। करेक्ट। सो आपने जैसे कहा कि कोविड ने टेक्नोलॉजी के ऊपर जो फोकस है बिजनेसेस का वो बढ़ा दिया है, एंड दैट इज ट्रू अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। सो मैं अगर टेक्नोलॉजी की बात करूं अमित जी, तो इसमें ऑनलाइन का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है अभी? सो एक तो है टेलीकॉलिंग, आपने कॉलिंग डायरेक्ट वो कर दिया, राइट। एंड व्हाट अबाउट द ऑनलाइन वेबसाइट्स एंड डायरेक्ट टू कंज्यूमर वाला? सर अभी डायरेक्ट टू कंज्यूमर वाला सेल बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही मिनिमल सेल है हमारा। हम उस पर फोकस भी नहीं कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि उस कैटेगरी के लिए बेसिकली बड़े वाले पैक्स चाहिए जो हमने पहली बार बनाना चालू करे हैं। एंड सेकंडली उसकी इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई, पहले काफी आपको ब्लीडिंग करना पड़ती है एक लेवल पे पहुंचने के लिए। हमें लगता है कि अभी 1-2 साल की देर है जहां पे हम ऑनलाइन में पुश कर पाए। हम मॉडर्न ट्रेड में जरूर अभी सभी जगह पहुंच गए हैं, पर ऑनलाइन में हमें लगता है कि अभी वी आर फार अवे फ्रॉम ऑनलाइन, एटलीस्ट फॉर 1 or 2 years फ्रॉम टुडे। Right, but I'm sure looking at your growth and looking at your pace, this is not too far away. So, sir, as we are coming close towards the end of the session, दो questions थी सर मेरे को। हमने जब रिसर्च करा था तो ये questions मेरे दिमाग में आए थे, and I really wanted to ask you. One is obviously आप जब आपने शुरू किया, right? You were a challenger brand. You just entered the market. What are the best practices in hiring the best people for all the roles and responsibilities across the company? वो आप लोगों ने कैसे किया? क्योंकि competition already था वहां पे, and there were bigger international companies who were operating in the same market. तो ये आपने कैसे क्रैक किया कि आप बेहतर लोगों को कैसे हायर किया आप लोगों ने अपनी कंपनी? तो मैं इसमें 2 चीज कहना चाहूंगा। एक तो हमारे जो पार्टनर है सिक्वायर कैपिटल, उन्होंने बेसिकली हमको बहुत हेल्प करा, जो हमारे इसमें बेसिकली इन्वेस्टर भी हैं। सेकेंडली, मेरी जो पर्सनल फिलॉसफी है, मैं कभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि एवरीवन इज अ पार्टनर। तो हम पहली कंपनी थे इंडिया में, जब लिस्टेड नहीं थे तब भी हमने सभी को हिसाब दे रखा है, फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। मतलब हमारा जो प्यून भी है, जो फर्स्ट प्यून था बेसिकली, आज उसके पास में कम से कम 15-20 लाख रुपए के स्टॉक की वैल्यू होगी। तो हमको था कि हम पार्टनर्स क्रिएट कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयज क्रिएट नहीं कर रहे हैं। वो हमारी स्टाइल ऑफ वर्किंग शुरू से रही है, वैसे ही करते रहे। उससे शायद मुझे लगता है हमें काफी हेल्प मिली अच्छे लोगों को लेने में और अच्छे लोगों को रिटेन करने में। नहीं तो स्टफ एनवायरनमेंट में अच्छे लोगों को रिटेन करना बहुत मुश्किल काम है। Right. And sir, as again, I'm just reiterating myself as we come to an end of the session. I really want to learn from you and be an advocate for all our audiences here. And if you can, right, summarize how भारत मार्केट, जो हम अनमेट्रो मार्केट कहते हैं इंडिया में, the next frontier of growth यही है for all businesses. How is Pratap Snacks looking at this market for the coming, say, 1 or 2 years? And what's next for the brand? What's the next big vision for the brand? पहली बात तो ये इंडिया के नहीं, मुझे लगता है वर्ल्ड के सबसे बड़े मार्केट हो जाएंगे। जो छोटे छोटे मार्केट आप देख रहे हैं, आप रुक जाइए, 5-10 साल बाद पूरे वर्ल्ड में इसी मार्केट के लोग बात करेंगे। प्रताप स्नैक्स बेसिकली आज की तारीख में हमारा शायद 4 से 5% मार्केट शेयर है। हमको लगता है कि अगले 5 साल में हमको यहाँ से मार्केट शेयर डबल करना है। हम काफी डीप डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। रिटेल पॉइंट में छोटे छोटे गांवों के अंदर कैसे पहुंच पाए, हाईवे पे कैसे पहुंच पाए, उसके लिए बहुत ही एक्सटेंसिव रूप से काम कर रहे हैं। तो वी रियली वांट टू रीच टू 10% मार्केट शेयर इन नेक्स्ट 5 years टाइम।
वो हमारा विजन है, यहाँ से डबल करना है ऑलमोस्ट मार्केट शेयर को. Right. And as I said earlier, looking at your pace and looking at your hunger towards growth, I'm sure in the next couple of years, when we meet again, we will be discussing those numbers. Thank you. On that note, thank you so much, sir. बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. हमारे दर्शकों को ये सेशन बहुत ही इंसाइटफुल लगेगा क्योंकि there are a lot of learnings that we could gather from your journey. And I'm sure, as we meet more often, we will discover more tidbits about the success story of Pratap Snacks. Thank you so much for joining us today. Thank you, sir. Thank you. और आपसे भी सीखने को मिला था जी. Thank you. Thank you, sir. Namaste. Thank you so much. Thank you, Mr. Kumat and Satyajit, for such an engaging discussion. I'm sure the audience enjoyed hearing about your ambitions and the Desi idea. Now let's move ahead and hear more such interesting stories of wonderful ideas and brand building.